Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning, sir. Hi, Very good sir. morning. Very good Sir. morning to Good each morning. one of you. Good morning. Namaste. नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं सर. आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया. By बहुत grace स्मार्ट of दिख रहे हैं God एकदम. and by grace of God and wishes of good people like you, I'm fine. या. ग्रेट. नंबर लेके बहुत अच्छा लगा. बहुत दिनों के बाद. बहुत दिनों बाद. I think it's a Right, pretty right. long time. बहुत दिनों बाद. Correct. आपकी आवाज सुनने की चाहते थे हम. नहीं मैं भी इंतजार में था, मौके में था. Fortunately अब मौका मिल गया है. बहुत अच्छा. चलिए 3 दिन करेंगे इंटरेक्शन. Yes sir. You are welcome. It is such a pleasure sir. तो पार्टिसिपेंट्स कितने हैं मैडम अभी? 1 minute. Sir. अपना हमारी नई फैकल्टी मेंबर है. 43 are there. We will wait, sir, for few minutes. Sure. No problem. We can wait for 3-4 minutes. Don't worry. Till the people come. कोई problem Yes. नहीं है. हमारी नई फैकल्टी मेंबर है मिस पूजा धाले. Okay, Pooja. Okay. She will Hi, Pooja. introduce you. Hi, sir. How are you, sir? I'm fine. आपसे इंटरेक्शन हुआ था मेरा परसों. यस. और हमारे और एक कोऑर्डिनेटर बना है एक प्रोग्राम के, अविनाश मुलतकर बोल के, वो भी है. Okay. वो भी कैमरा ऑन करके सामने आ सकते हैं. Good morning, Avinash. अनम्यूट करा मुझे सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. Very good morning, Mr. Morning, sir. Avinash. How are you doing? कैसे हैं आप? ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके. ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है. Good, very nice. और हमारे दूसरे, जब तक टाइम है तब तक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ फैकल्टी मेंबर्स के. प्लीज. यस सर. हमारे डॉक्टर चंद्रकांत ठाकरे सर भी है प्रेजेंट. ओके. प्लीज ठाकरे सर ऑन करिए आपका कैमरा. ठाकरे सर है क्या? नहीं, ठाकरे सर तो है. Hi, sir. है मीटिंग में है. तो दूसरे एक फैकल्टी मेंबर है डॉक्टर संजय दुधमल. यस. हाँ, मीट मिस्टर ठाकरे. यस. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर ठाकरे साहब. और कैसे हैं आप? डॉक्टर है वो. डॉक्टर ठाकरे साहब कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आप गुड मॉर्निंग सर. दिखाई नहीं पड़ रहे. आपने क्या जादू किया? हाँ ठीक है, अब आप दिखाई पड़ रहे हैं. और अभी दिख रहा है क्या सर? हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत क्लियर दिख रहे हैं. हाउ आर यू सर? फाइन सर. वेरी नाइस. और दूसरे एक डॉक्टर है संजय दुधमल. डॉक्टर संजय दुधमल, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ऑन योर कैमरा. डॉक्टर संजय दुधमल सर and Dr. Ghodke sir is there. Please come. And Karbari sir is also there. You please on your camera. जॉइन कॅमेरा ऑन करा दुधमल सर आणि घोडके सर. घोडके सर नाही आहेत सर मीटिंग मध्ये. घोडके सर दिसता आहेत. अच्छा नाही. Not Okay. in this meeting. Dr. Sanjay is there. Okay, no problem. So these are our faculty members. Yes, so very nice meeting you, seeing you all, and it is a great pleasure to see you all. Yes. थैंक यू सर. Yes sir. Shall we start, sir? From our side it is okay, no problem. Yes. Shall we start, sir? Yes, please. From my side, it is absolutely fine. You can please start. Go ahead. Okay. So,
should I start? You want me to start now? Ma'am will Yes, give you I- introduction. Yes, sir. Sure. So my voice is clear, sir? Yeah, I can hear. Okay. So firstly, a very good morning to everyone presented here. I, Miss Pooja Dhale, with warm greetings. It gives me a great pleasure to extend a warm welcome on behalf of Maharashtra Poly Diploma Institute, Nilanga. Firstly, I offer my special regards to a speaker, Ratish Dikshit sir. I also convey my regards to all the participants for joining the session on time. We welcome you, sir. We are going to conduct the 3 days webinar on how to set up the pharmacy shop, power of selling skills and introduction to the brand management. So today we are going to focus on how to set up the pharmacy shop with a today's resource person Ratish Dikshit sir. So now it's a time to give a sweet info about the sir. Sir has completed his M.Pharm MSS from Pune University. He worked at AstraZeneca for about 9 years, 4 months as a tertiary management a business manager for 3 years in Pune, also worked in areas of business manager for 4 years in Hyderabad and a brand leader for about 3 years in Bangalore. Also, he had experience of 10 years, 9 months in Biocon as a senior marketing manager. Also, he have 23 years of rich experience in pharmaceutical industry, which includes sales, marketing, L&D. Now, currently, sir is working as a co-founder and director at the Nabitia Solutionalist. So, I am very thankful to you, sir, for accepting our invitation by taking out the time from your busy schedule. So, we will start the first day of our session with a beautiful thought. Never underestimate your own strength. You were born for a purpose and are blessed with the power to achieve it. So work harder until the success makes a noise. Only remember, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the endings. So thank you one and all. Thank you, sir. Now I hand over the session to the Ratish Dikshit, sir. Have a great session, sir. Thank you. Over to you. Okay. Yeah. Great. Yeah. So a very good morning to each one of you. And if I have to say, it is Suprabhat and greetings from Bangalore. बैंगलोर को पहले गार्डन सिटी बोला जाता था, अभी गार्डन कम है लेकिन सिटी बहुत अच्छा है. So it's a beautiful city and I'm blessed to be a part of this wonderful city. Now, at the outset, let me also thank Mr. Paul sir for giving me this opportunity. We have been talking for a pretty long time कि कैसे हम एक बार फिर मिले. लास्ट ईयर हम लोग ने मैंने सेशन किया था, इस बार फिर मिले और कैसे मेरी जो नॉलेज है, मेरे जो एक्सपीरियंस है ओवर 23 years in sales, marketing and learning and development, which is training, वो मेरा एक्सपीरियंस कैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. And fortunately, today is a great day. Today is the beginning of the week and we are here. So once again, thank you for inviting me, and it is my pleasure to be a part of this wonderful program. Now जो ये टॉपिक लिया है आप लोगों ने और जो मेरी और पॉल सर की बात हुई है, इस टॉपिक का रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट 2 साल या 2.5 years पहले. क्यों मैं 2 साल बोल रहा हूं कि किसी को पता नहीं था, किसी को इवन आइडिया भी नहीं था कि इन 2019 वी विल बी स्ट्रक. हमें एक ऐसा पैंडेमिक से फेस करना पड़ेगा कि which will change people life. लोगों की जिंदगी बदल दी है लास्ट 2 years में. बहुत सी इंडस्ट्री इस दौरान they are not doing well, but एक इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री का नाम मैं लेने वाला हूं सबको पता है, वो है फार्मा इंडस्ट्री, is doing extremely well. I can't say thanks to COVID, but COVID has been the reason why
industry, if they were growing by 9%, today industry is growing by double digit. It is growing by 16 to 17%. So this is, I have set the tone for the presentation. Now give me a moment to share the presentation slides. Is that fine? Are you guys happy? Yes, Yeah, sir. sure, sir. Fantastic. Very nice. Okay. Is everybody able to see the slide, sir? Yes, Yes. yes, sir. Yes, yes, पूजा, आपको दिख रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपको क्या दिख रहा है? आप ये बताइए, आपको क्या, ये देखकर आपको क्या समझ में आता है, क्या आइडिया आता है? That how to set up that setup of the one of the medical store. Yes, absolutely bang on. देखिए, ये जो प्रोफेशन है, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज से जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, आप ये प्रेजेंटेशन देखकर आप सोच सकते हैं कि ये प्रोफेशन कितना नोबल प्रोफेशन है, कितना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपनी नॉलेज, जो कुछ आपने पढ़ा है, वो आप इस प्रोफेशन में बहुत बढ़िया तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ लोग देखा है कि इंजीनियरिंग कर वो लोग डिफरेंट फील्ड में जाते हैं, तो उन्होंने जो 4 साल अपने इंजीनियरिंग में बिताए हैं, यू नो, दे हैव स्पेंट 4 years इन इंजीनियरिंग, उसका क्या फायदा है या? लेकिन ये प्रोफेशन में आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले हैं और विच इज रिलेटिंग टू मेडिसिन, तो आप अपनी नॉलेज बहुत बढ़िया तरह यूज कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से, इस वक्त से, आज नहीं, फॉर अ मोमेंट you guys start thinking that, you know, how does a pharmacy look, कैसा फार्मेसी दिखता है, क्या होना चाहिए। आप लोग को रोज उठकर आपको ये थॉट आना चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, एंड बिलीव मी, अगर आप लोग रियली इंटरेस्टेड हैं तो आपका जो सपना है ये बहुत बहुत जल्दी पूरा होगा। दैट्स द मैसेज, that's the important message. And Pooja, am I audible? मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. Sure. You are audible, sir. Thank you. Okay. Now, before I start, I'll just give already Pooja has introduced me. Thank you, Pooja, for introducing me. A very small thing. After 23 years of experience, I was working. मैंने 2 बड़ी कंपनियों में काम किया है. AstraZeneca close to 10 years, Biocon 11 साल, where I was the head marketing and a senior marketing manager, and I have done my B Pharma, M Pharma and management from Pune University. And hobbies में मुझे, I play cricket, I play table tennis, you know, I represented Goa when I was in Goa. So these are my areas of interest. Now आप 1 घंटे या 1.25 घंटे में क्या सीखना, what are you going to learn within this 45 or 60 minutes or 75 minutes में, ये important चीजें आप समझेंगे। आप फार्मा इंडस्ट्री, क्यों मुझे मेडिकल शॉप खोलना चाहिए, दैट्स पॉइंट नंबर 1। तो मैं आपको थोड़ा एक रोशनी डालूंगा कि फार्मा इंडस्ट्री आज कैसी है और 20 साल पहले कैसी थी। फिर टाइप्स ऑफ मेडिकल स्टोर्स कैसे होते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। हाउ डू यू ड्रॉ अ बिजनेस प्लान। अगर कोई चीज आप स्टार्ट करते हो लाइफ में दोस्तों, तो उसको आपको क्या, यू हैव टू राइट, आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू डू दैट एज वेल। देन आप मेडिसिन कहाँ से लाते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको रिक्वायर्ड हैं, कैन यू गेट अ लोन।
आपको लोन की फैसिलिटी है, 100% है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई ये बिजनेस में मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं, विल आई गेट अ प्रॉफिट और नॉट, इज दिस अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर मी, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आप लोग दिमाग में रहता है। इसके लिए पैसा कितना चाहिए होगा, क्या एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके लिए पैसा कितना चाहिए होगा। और मैं आपको आजकल ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में भी बहुत सी बातें हो रही हैं, तो उसका भी आपको मैं पर्सपेक्टिव दूंगा कि क्या स्टेटस है, कौन कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और क्या क्या ऑनलाइन फार्मेसी में होता है। सो दीज आर learning outcomes which you will understand of post this presentation. Now, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक छोटा सा नजारा जिसको बोलते हैं ओवरव्यू। आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज 42 बिलियन। अगर आप बिलियन लो and if you convert it into Indian rupees, that will be close to 3 lakhs crore, which is the pharmaceutical industry, and it ranks third in terms of volume. मतलब volume is इसमें units कितनी है, that is volume, third, and 13th in terms of value. मैं गेस करता हूं कि आप सबको पता होगा कि वैल्यू में 13th है और वॉल्यूम में इंडिया इट रैंक्स थर्ड। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज ड्यूरिंग लास्ट 2 years, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 2 साल में फार्मास्यूटिकल मार्केट हैज इंक्रीज्ड एट 17.7%, जो पहले 13.7% से ग्रो कर रहा था। तो ग्रोथ भी इंक्रीज हुई है, वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। दैट्स द वो आपको पॉइंट इस फर्स्ट स्लाइड से लेना होगा। सेकेंड पॉइंट, इंडिया फार्मा इंडस्ट्री का लैंडस्केप क्या है। अगर आप देखें 1969 में 95% शेयर जो था वो ग्लोबल से आता था, राइट? मतलब हम लोग ग्लोबली इंपोर्ट करते थे। आज के दौरान 80% ऑफ मेडिसिन आर मेड इन इंडिया। इस बात पर तालियां हो जाएं। इंडिया में 80% हम खुद बनाते हैं, एंड दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। हमारी जो डिपेंडेंसी है, जितना हम लोगों पर पहले डिपेंड करते थे, बाहर की कंट्री हुई, चाइना हुआ, यूएस हुआ, ये सब, अब हमारी डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है, एंड वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड वी आर नाउ मेड इन इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, मेड इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट, द फार्मा इंडस्ट्री 20% वॉल्यूम जो जेनरिक मार्केट होता है। 2 टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, एक होता है ब्रांडेड मार्केट, दूसरा होता है जेनरिक मार्केट। एग्जांपल ऑफ जेनरिक मार्केट है टेलमी साटन, उसका ब्रांड नहीं होता है कोई। सो टेलमी साटन 40 mg सॉल्ट का नाम है, राइट? तो दैट इज अ जेनरिक मार्केट, दैट इज अ ग्रोइंग मार्केट, एंड हम वैक्सीन 62% we get it from global demand. So these are 2 very important point. Third point is, अगर IT है, ऑटो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो फार्मा भी इंक्लूड होता है, which attracts foreign direct investment. टॉप 10 सेक्टर्स में फार्मा को भी इंक्लूड करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट FDI जिसे बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आता है, तो उसमें फार्मा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इज दैट क्लियर? पूजा, एम आई गोइंग फास्ट, एम आई गोइंग स्लो, इज इट फाइन? No, sir. No, sir, it is fine.
It is fine. Okay, great. Paul sir, all fine? It is okay, sir. No problem. Okay, excellent. Fantastic. Okay, now my next slide. ये मेरा आपसे गुजारिश है, इस स्लाइड को आप ठीक से देखिए, मैं आपको इस स्लाइड समझाता हूं। दो तरह की थेरेपी होती है, एक होता है क्रोनिक थेरेपी, दूसरा होता है एक्यूट थेरेपी। क्रोनिक थेरेपी क्या होती है? क्रोनिक थेरेपी जैसे आपका कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, जहां पर पेशेंट कंटिन्यू करता है, इट्स नोन एज अ क्रोनिक थेरेपी। एक्यूट थेरेपी में आपका इन्फेक्शंस आते हैं, राइट, आपका गैस्ट्रो आते हैं। तो नाउ सब आउट ऑफ 100% मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, जो ग्रीन कलर का लाइन आप देख रहे हैं, वो जो पाई में, उसका 14% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम एंटी इन्फेक्टिव्स आउट ऑफ 100%। उसके बाद जो सेकेंड कंट्रीब्यूशन आता है वो है कार्डियक थेरेपी, 12%, राइट। एंड उसके बाद जो आपका आता है वो गैस्ट्रो है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें तो आपका क्लोज टू 35 या 40% कंट्रीब्यूशन ये टॉप 3 थेरेपी से आता है। जो ये 17% दिख रहा है वो अदर्स है, यू नो, इट इज अदर्स। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज, और जो आप ब्लू तरह की लाइन देख रहे हैं, now anti-infectives are growing, that is the growth factor, 9.9% it is growing. तर उत्तर द्या जायचं आप उत्तर करतात ना मध्ये कसं करावं तारीख बिरीख राहते. Yeah, any problem? Participants, please mute your mic. All participants are requested to mute your mic. Sir, you are muted, sir. Ratish, sir. Okay, now आपको जो blue is a growth factor, 9.9% is, that means anti-infectives are growing 9% as compared to last year. Cardiac therapy is growing by 11%, right? Gastro is growing by 8.1%. So these are the growth factors. तो इसमें मैसेज क्या है? सबसे बड़ा थेरेपी होता है anti-infective, which contribute 14%, followed by cardiac therapy, which contributes 12%. Correct? Now going to the third slide. Now, fact of the matter. ध्यान से सुनिए. India currently has more than 8,50,000 retail independent stand-alone pharmacy across India. But क्या ये फार्मेसी ज्यादा है या कम है? Only 60% of total medicine demands are fulfilled. That means इंडिया में अभी भी फार्मेसी, इंडिपेंडेंट रिटेल फार्मेसी की नीड है, बिकॉज 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस आर स्टिल नॉट एबल टू एक्सेस टू मेडिसिन्स, बिकॉज फार्मेसी का जो प्रेजेंस है वो 8,50,000 है, और which fulfills only 60% of total medicine demand across India. तो अगर आप लोग फार्मेसी खोलने का इरादा कर रहे हैं तो इट इज द राइट प्रोफेशन, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, क्योंकि डिमांड है। आप कोई भी अगर आप बिजनेस खोलते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या उसमें डिमांड है, पोटेंशियल है? अगर दो चीज है तो आप 100% उस बिजनेस में जाते हैं। तो रिटेल फार्मेसी में भी वही है कि नीड है, नीड इज देयर, एंड इफ यू कैन ओपन अ गुड क्वालिटी फार्मेसी, आई थिंक इट यू विल हेल्प द पेशेंट्स and you will also make profits. Now,
Second, 60 generic medical stores are successfully serving for needy person. मतलब इनको हम बोलते हैं जन औषधि, और ये लोग, इसमें आपको कोई ब्रांडेड ड्रग्स नहीं मिलेगी, ये जनरली हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड होती हैं और उनके बगल में खुली रहती हैं, और इसमें बहुत सस्ती या अफोर्डेबल दवाइयां मिलती हैं, राइट। और प्रेजेंटली 60 जेनरिक मेडिकल स्टोर्स आर ऑपरेटिंग अक्रॉस इंडिया, जिन्हें हम जन औषधि बोलते हैं, राइट पूजा, इज दैट राइट? या Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. या Paul sir, am I going fast or am I fine? Yes, correct speed. Yeah, fine, एकदम fine. beautiful. Fantastic. Okay. Now coming to the next very important topic is, आप अब ये सोचेंगे भाई आपने हमें इंडियन मार्केट, इंडियन फार्मा मार्केट बता दिया, आपने हमें ये बता दिया कि मार्केट कैसे ग्रो कर रही है, क्रोनिक थेरेपी कैसे हो रही है, और आपने हमें ये भी बता दिया कि अभी 40% ऑफ इंडिया इज नॉट एबल टू एक्सेस द ड्रग्स, और 40% अभी फार्मेसीज कम है एज कंपेयर टू द टोटल, राइट। तो नीड इज देयर ऑफ द फार्मेसी एंड वी शुड ओपन अ फार्मेसी। अब हम आपको इस स्लाइड में बताने की कोशिश करेंगे कि the types of medical stores which are there. There are different types of medical store. The number one medical store is hospital medical care store. Now ये जैसे ही नाम इंडिकेट करता है, this pharmacy is inside a hospital, and जो पेशेंट्स हॉस्पिटल विजिट करते हैं उनको वो हेल्प करता है रिगार्डिंग प्रोक्योरिंग ऑफ द ड्रग्स। इसका नाम इसीलिए हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर है। सेकंड है स्टैंड अलोन मेडिकल स्टोर। नाउ सबसे ज्यादा कॉमन जो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर इंडिया में पाए जाते हैं, क्लोज टू 70%, वो स्टैंड अलोन होते हैं। स्टैंड अलोन मतलब आप कोई भी दुकान जो देखते हैं आपकी एरिया में, एक दुकान जो सेटअप होती है, उसको हम स्टैंड अलोन मेडिकल स्टोर बोलते हैं। थर्ड पार्ट इज चेन ऑफ फार्मेसी। आपने जैसे अपोलो फार्मेसी है, मेड प्लस फार्मेसी है, नेटमेड्स फार्मेसी है, Medline pharmacy है. These are chains of pharmacy which are present across the city. आपको जैसे अपोलो फार्मेसी हर जगह मिलेगा, हर जगह आप अपोलो फार्मेसी देख पाएंगे। तो इन फार्मेसी का क्लासिफिकेशन होता है चेन ऑफ फार्मेसी। द लास्ट वन इज नोन एज टाउनशिप मेडिकल स्टोर्स। आजकल पूना में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, दिल्ली में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं। जैसे जहां पर मैं रहता हूं वहां मेरे अपार्टमेंट में नीचे 2 फार्मेसी शॉप्स हैं। तो कहने का मतलब है आपका इतना सुविधा, इतना कन्वीनियंस है कि मैं नीचे जाकर उसे फोन कर देता हूं और वो मुझे आकर डिलीवरी कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मेसी तो आपने खोल दिया, लेकिन आप पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको कैसे कन्वीनियंट मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ अ फार्मासिस्ट, ऑफ अ पर्सन हु इज देयर, राइट। तभी तो वो आपको प्रिफर करेंगे कि ये जो बंदा है, ये जो मेडिकल शॉप है, ये मेरे घर में जब भी मुझे जरूरत पड़ती है दोपहर को या शाम को, वो आकर मैं फोन करता हूं या ऑर्डर प्लेस करता हूं और वो आकर मुझे डिलीवरी कर देता है। वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है आपको अपनी सर्विसेज को कैसे बढ़ाएं।
दवाइयां तो सब लोग बेचते हैं, लेकिन आप अपने मेडिकल शॉप में कैसे अपनी सर्विसेज को बेटर करें एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, तभी लोग आपको कंसिडर करेंगे और यू विल बी एबल टू सेल मोर. So this is about the type of medical store. Now coming to the next slide, what are the factors? हमने भाई ये सोचना है कि अब हम एक मेडिकल शॉप खोलने वाले हैं, हमने अब ये सोच लिया है, अब उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी. फर्स्ट चीज आपको, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू राइट अ बिजनेस प्लान. वेरी इंपॉर्टेंट भाई. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सुबह उठे और बोला चलो आज फार्मेसी हम खोल दें. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू हैव अ राइट बिजनेस प्लान. और उस बिजनेस प्लान में आप क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे. पॉइंट नंबर 1, एनालाइज द पॉपुलेशन. अगर आपको पॉपुलेशन यहां पर जहां पर मैं रहता हूं, इस पॉपुलेशन 5 लाख या 10 लाख पॉपुलेशन है, क्या यहां पर ये सही पॉपुलेशन है. सेकेंड पॉइंट आपको एनालाइज करना है, यहां पर जिस जगह मैं खोलने वाला हूं वहां पर कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी फार्मेसी शॉप्स हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं आपके. दैट इज द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज कस्टमर. जो आपके कस्टमर हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, आर दे हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग फार्मेसी. कंप्लेन है कि अरे भाई उसके पास दवाई कभी भी जाओ मिलती नहीं है, वो सप्लाई ठीक समय पर नहीं देता है, वो पैसे मुझसे ज्यादा मांग लेता है, एमआरपी के ऊपर बेचता है, डिस्काउंट्स नहीं देता है, राइट. तो आपको फीडबैक लेना है फ्रॉम द कस्टमर्स. एंड हु आर योर कस्टमर्स? वन कस्टमर इज अ डॉक्टर, सेकेंड इज द पेशेंट, राइट. So that's point number 2. Point number 3 is market opportunity. Next 2 years में क्या opportunity होने वाली है, क्योंकि डिजीजेस बढ़ रही हैं. डिजीजेस बढ़ेंगी तो दवाई भी बढ़ेंगी, नई ड्रग्स भी लॉन्च होंगी. नई ड्रग्स लॉन्च होंगी तो मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है, वो ड्रग को मेरी मेडिकल शॉप में आएंगे. पेशेंट फ्लो बढ़ने वाला है, डिजीजेस आने वाली है, पैंडेमिक, हर साल पैंडेमिक आ सकता है, तो ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. तो फोर्थ पॉइंट इज कि अगर मैंने अपना फार्मेसी खोला तो उसको मैं लोगों को कैसे पहुंचाऊंगा कि मैंने फार्मेसी खोला है. क्या स्ट्रैटेजी, क्या एडवर्टाइजिंग करूंगा या कैसे करूंगा, डिजिटल एडवर्टाइजिंग करूंगा, या उस एरिया में लोगों को पता होना चाहिए कि आज कोई नई फार्मेसी शुरू हुई है. सो ये उसको हम मीडिया के थ्रू करेंगे या डिजिटल के थ्रू करेंगे या थ्रू न्यूज़पेपर करेंगे, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है. तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया. पॉपुलेशन को एनालाइज करना है, कितना पॉपुलेशन है, कितना हर ईयर ये पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रहा है, क्या कितने लोग परसेंटेज लोग सिक होते हैं, बीमार होते हैं. पॉइंट नंबर 2, कस्टमर नीड्स, इवैल्यूएट द मार्केट अपॉर्चुनिटी. कैसी है मार्केट, नेक्स्ट 3 इयर्स में कितना, कैसी डिजीजेस बढ़ने वाली हैं और अपॉर्चुनिटी क्या है. एंड द लास्ट इज कैसे मैं लोगों तक पहुंचूं, वो इंपॉर्टेंट है. व्हाट शुड बी माय एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी. इज दैट क्लियर, पॉल सर? Yes, sir. Very nice. Well, going on very well. Very good. Okay. So ये आपको बिजनेस प्लान लिखना बहुत ही महत्व है, इंपॉर्टेंट है, एंड यू गाइस मस्ट डू दैट before opening any business, not only pharmacy, any business. Second point, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सुनिए, अपनी आंखें और कान खोलकर सुनिए ये बात। लोकेशन ऑफ फार्मेसी क्या होना चाहिए? आपको वो लोकेशन चूज करना चाहिए जहां पर लोग वॉक करें। ये नहीं कि अगर आपने सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में अगर आपने फार्मेसी खोल दिया तो कौन लोग ऊपर आएंगे। आपको ऐसी जगह खोलना चाहिए जहां लोग पैदल चलते हो, वहां पर आपको नीचे का शॉप मिला हो, लोगों की एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, और इंपॉर्टेंटली ये सब आप कर सकते हैं। आपको एक या दो हफ्ते लोग वो एरिया को ऑब्जर्व करना चाहिए। यू गाइज नीड टू ऑब्जर्व दैट हाउ इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, कैसे लोग आते हैं, कहाँ से अपने कौन सी फार्मेसी जाते हैं, क्या जाकर करते हैं। तो अगर ये आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसा ये मेरे लिए ये लोकेशन परफेक्ट है कि मुझे कोई दूसरी जगह चूज करना चाहिए। सो लोकेशन ऑफ फार्मेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, फिनेंस। इसमें तीन तरह के होते हैं। एक होता है रियल एस्टेट कैपिटल। अगर मान लीजिए दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। वन ऑप्शन इज यू कैन गो एंड डायरेक्टली बाय द शॉप, उसके लिए थोड़ा कॉस्ट रहेगा। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये होता है कि आप रेंटल में ऑन अ मंथली बेसिस आप उसको रेंट में ले सकते हैं। और तीस और उसके अगर आप रेंट में लेते हैं तो आपको उसके लिए 6 महीने या 3 महीने या 1 साल का एडवांस भी देना चाहिए। तो वो भी आपके दिमाग में यू गाइज नीड टू कैलकुलेट दैट एज वेल कि अगर मेरा रेंट है 4,000 या 5,000 तो अगर 1 साल का ले रहा है तो 60,000 रुपये मुझे एडवांस देना पड़ेगा, या 3 महीने का ले रहा है तो 15,000 एडवांस देगा। तो इसको बोलते हैं रियल एस्टेट कैपिटल। सेकेंड पॉइंट इज इन्वेंट्री कैपिटल। आप अपना कैपिटल यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री लाने के लिए इनिशियली, या आप आजकल बहुत सी कंपनीज है आपको फिनेंस कर सकती हैं। एंड क्योंकि एक अच्छी चीज होती है फार्मेसी में कि सप्लाई एंड डिमांड बहुत अच्छा होता है, इसीलिए कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आता है, ऑलवेज पैसा आता रहता है। तो वो बेस्ड ऑन दैट यू कैन पे एन इंटरेस्ट एंड ऑल्सो गेट अ लोन, एंड दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर इन्वेंट्री कैपिटल। थर्ड पॉइंट, वर्किंग कैपिटल। अभी आपने तो रियल स्टेट कैपिटल ले लिया, इन्वेंट्री कैपिटल ले लिया, नाउ थर्ड इज वर्किंग कैपिटल। हर रोज जैसे एक दिन में आपका कितना खर्चा होगा, चाय पानी का होगा या कुछ और खर्चे होंगे, वो सब आपको ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्ट, आपको भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैपिटल हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी फार्मेसीज फेल हो जाती हैं। क्यों फेल हो जाती हैं? द रीजन इज स्टार्टअप उनको अंडर कैपिटलाइजेशन, मतलब वो सोचते हैं मेरा 1 लाख में काम चल जाएगा, लेकिन 1 लाख कम पड़ जाता है, और क्योंकि आपके पास फंड्स कम होते हैं तो आप the reason is that the pharmacy may not work, it may fail. So मेरा सुझाव, मेरा कहना आपसे यही है कि इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना नहीं होगा वो आपको कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। Very important, what are the key aspects to be kept in mind?
आप जब फार्मेसी खोल रहे हैं आपने देख लिया है कि कैपिटल होना जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है, बट जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अगर आप ये करेंगे तो आपको सक्सेस इज गारंटीड, सक्सेस इज गारंटीड। पॉइंट नंबर 1, आप अगर रिटेल स्टोर कर रहे हैं तो यू वुड रिक्वायर एन एरिया ऑफ अबाउट 10 स्क्वायर मीटर्स। 10 स्क्वायर मीटर्स में भी आपका अच्छी फार्मेसी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप होलसेल भी कर रहे हैं, स्टॉकिस्ट भी बन रहे हैं होलसेल, तब मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 15 स्क्वायर मीटर्स की पड़ सकती है, राइट? दैट इज पॉइंट नंबर 1. Point number 2 is tie up with the doctor. Please understand, बहुत सी फार्मेसीज क्लोज हो जाती हैं क्योंकि जो नियर बाय डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप जाकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं. यू डोंट गो एंड इन्फॉर्म देम, सर मुझे सर लेट मी, मुझे बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि मैं यहाँ पर फार्मेसी शॉप खोल रहा हूँ और मेरा एश्योरेंस ये है कि मेरी फार्मेसी 24 आवर्स खुली रहेगी, कोई भी आपका प्रिस्क्रिप्शन जो भी है वो बाउंस नहीं करेगा. तो यू आर बेसिकली गिविंग कॉन्फिडेंस टू द डॉक्टर्स. मैंने बहुत से फार्मेसीज देखे हैं वो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, और क्योंकि डॉक्टर्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो डॉक्टर को पता नहीं होता है, और इसी का रीजन होता है वो फार्मेसीज चलती नहीं है. सो गो एंड मीट एटलीस्ट 8 to 10 डॉक्टर्स ऑफ योर एरिया, इन्फॉर्म देम, उनको बताइए कि सर मैंने फार्मेसी खोल रहा हूं और उसके लिए मैं आपको इनॉग्रेट करने के लिए बुला रहा हूं, प्लीज कम एंड अटेंड. तो उससे क्या होगा, आप लोगों को अवेयरनेस कर रहे हो कि एक बड़ी फार्मेसी यहां पर खुल रही है. दैट्स पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, कोई रो रहा है क्या? Participants are requested, keep your mind okay. Okay sir आप म्यूट है. ओके. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी फार्मेसी में एक जो आदमी हो वो क्वालिफाइड आदमी हो, यू नो, एज पर द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट. यू नो, आप कोई भी बीएससी हो या कोई और है उसको आप लाकर, अगर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो वो एक्चुअली वो चला नहीं सकता है. आजकल लोग क्या ट्रेंड हो रहा है, लेट मी ऑल्सो टेल यू फ्रेंड्स. लोग, किसी ने फार्मेसी किया है, उसके पास लाइसेंस है, वो किसी और को जाकर बोलता है आप खोल लो लाइसेंस मेरे नाम पर, और वो शॉप में रहता नहीं है. सो दिस इज नॉट द राइट ट्रेंड एंड दिस इज इलीगल. नेवर डू दैट. आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, you need to be there, and as per the drug control department, one person has to be a registered pharmacist. That is a very important. So getting a skilled personnel, आपको 2-4 हजार रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आदमी को क्वालिफाइड या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ पॉइंट इज स्टोरेज. देखिए, आपने फार्मेसी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अगर आपने उसमें फ्रिज नहीं डाला, और अगर आपने फ्रिज नहीं डाला, there are certain medicines which require, you know, cold storage. For example, insulin, liquid antibiotics, vaccines, they require a temperature of between 3 to 8 degrees. इसीलिए आपके जो फार्मेसी है उसमें फ्रिज, अच्छा फ्रिज होना, बड़ा फ्रिज होना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट 280 और 300
लीटर्स का फ्रिज होना चाहिए, बिकॉज आपकी मेडिसिन वही है। अगर आप इंसुलिन को बाहर रख देंगे या वैक्सीन को बाहर रख देंगे तो उनकी एफिकेसी कम हो जाएगी एंड दे विल नॉट बी इफेक्टिव, एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ। बी वेरी क्लियर, बिकॉज आप लोगों को ये तो पढ़ाया गया होगा। मैं फिर से इसको रीइंफोर्स और फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज पॉइंट नंबर 4। पॉल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, दिस इज द पार्ट ऑफ ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। करेक्ट, आई न्यू दैट, बट आई थॉट है, लेकिन आपके व्यू से अगर आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड का सिनेरियो लेके। यस, वेल गुड सर। तो आप एक मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना आप प्रोफेशनल होगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा फार्मेसी में। यू नीड टू बी प्रोफेशनल। हर कुछ केमिस्ट बिल अवॉइड करते हैं, बिल नहीं देते हैं, यू नो, ये सब कभी मत कीजिएगा। गिव देम अ बिल, गिव देम अ गारंटी, गिव देम द genuine product, buy from the right stockist. These are important things to be successful, और जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे you will make lot of profit. That is very very important. Investment. Now in investment there are two categories. अगर आप सेमी अर्बन एंड स्मॉल टाउन्स में कर रहे हैं तो आपको टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में कर रहे हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो 3 या 4 लाख रुपए में काम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल टाउन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन आप मेट्रोज में कर रहे हैं, और मेरा डेफिनेशन मेट्रो में है हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, पूना, अहमदाबाद, दीज आर इंपॉर्टेंट मेट्रोज। यहां पर आपको थोड़ा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिटवीन 4 to 6 और 7 lakhs. सो दैट इज, तो बेस्ड ऑन दैट आपको सोचना चाहिए कि अगर ये 5 या 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है तो मेरे पास अगर 3 लाख रुपए है तो क्या मैं 3 लाख रुपए का लोन ले सकता हूं? And you get a business loan for less than 8 to 9%. So that's a good idea. So that is the way you need to plan. आप एक्सेल शीट में सब कुछ प्लान कर लीजिए। मैं इतना मेरे पास इतना पैसा है, इतना फार्मेसी में लगेगा, या इतना लोन लूंगा, इतना बिजनेस होगा, इतना टर्नओवर होगा, इतना प्रॉफिटेबिलिटी होगा। तो अगर आप ये ठीक से करेंगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा। नाउ आपको लाइसेंस का क्या क्राइटेरिया है? आपको लाइसेंस कब मिलेगा फॉर अ मेडिकल शॉप? बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इज इट गोइंग टू बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अ पार्टनरशिप फर्म? नाउ maximum chemist or pharmacy shops are on sole proprietorship and very less on partnership. Private limited बहुत कम होती है। तो अगर आप मैंने नीचे उसका वेबसाइट लिखा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, और आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको ये सब आपको लाइसेंस क्लोज टू 45 या 60 डेज में आपको लाइसेंस फॉर अ मेडिकल शॉप भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज कि दिस इज अ डिजिटल रेडी। कुछ अगर आपको अपडेटेड रहना है, आपकी फार्मेसी में डिजिटल होना बहुत जरूरी है। मैनुअल वर्क 3 घंटे लेता है, अगर इफ यू आर डिजिटल वही समय 3 घंटे से रिड्यूस होकर 20 मिनट्स में आपका काम होना चाहिए। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर गोइंग डिजिटल इन योर फार्मेसी शॉप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस डिजिटल का उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि
कि आजकल अच्छे फार्मेसी में आपके पास बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ बताते हैं। आपको इन्वेंट्री के बारे में बताते हैं, आपको पेशेंट का डेटा पूरा देते हैं, आपको कितना आपको डिलीवरी और ट्रैकिंग में हेल्प कर सकते हैं, आपको या हेलो या तो आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर अगर आपके पास होगा तो आप क्लियरली आपको कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ मल्टीपल डिस्काउंट्स ऑफर्स इस सब में ये सब होता है। आपको कब परचेज करना है, कब आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, आपने लास्ट कब परचेज किया था, अब सब ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बीइंग डिजिटल is extremely important and you cannot miss this opportunity. Very, very important. Paul sir, all fine? Yes, sir. Yeah? Yes, yes. Good, good, good. Great, sir. This software आजकल बहुत कंपनीज देती हैं, तो इसमें आपका बड़े अच्छे फीचर्स हैं जो आप अपनी फार्मेसी में लगा सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहां से अपनी दवाइयां मंगाते हैं? कंपनी जो है, कंपनी वो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट जो होता है, उन्होंने अपॉइंट होता है हर सिटी में, वो वहां से कंपनी से दवाइयां CNF या कैरी एंड फॉरवर्ड में आती हैं। कैरी एंड फॉरवर्ड में आने के बाद वो हर कंपनी के पास स्टॉकिस्ट होता है, राइट? अगर मान लीजिए एस्ट्राजेनेका कंपनी है, बायोकॉन है, सन है, हर सिटी में उनका स्टॉकिस्ट होता है। स्टॉकिस्ट का काम ये होता है कि वो दवाइयां कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से खरीदता है, और वही दवाइयां आप खरीदते हैं, और वो केमिस्ट वो दवाइयां पेशेंट्स को देता है। आप समझ गए? तो ये फ्लो है, from company to CNF, CNF to stockist, stockist to chemist, and from chemist it goes to patients. Now a very important point is, आप जब स्टॉकिस्ट से लेता है तो आपको तुरंत पैसा देने की जरूरत नहीं है। You can take a time of 20 to 30 days. तो you are actually doing business on stockist money. That is the advantage of being a chemist. आप स्टॉकिस्ट से लेंगे और उनको 20 या 30 दिन में जब आपका स्टॉक लिक्विडेट हो गया तब आप उन्हें पैसा दे देंगे। That is what it is. Third point. So what are the requirements which are required for a pharmacy? You need a pharmacy license to open a medical store. You need a land registration. अगर आपने खरीदा है तो उस land registration का आपको you need to have papers. You need to have registration of medical store business कि ये registered medical store मेरा है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आपने कोई नाम से कंपनी खोली है, जैसे मैंने नेविगेटा खोली है तो मेरा इसका रजिस्ट्रेशन है, तो वैसे ही आपको अपना नाम, कंपनी का जो नाम है आशा मेडिकल्स, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। फोर्थ पॉइंट इज टैक्स रजिस्ट्रेशन, हर साल आपको टैक्स भरना होगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर द ड्रग लाइसेंस। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो आपके पास होनी चाहिए। फार्मेसी लाइसेंस, लैब रजिस्ट्रेशन, अगर ये सब हैं तो यू आर ऑल सेट टू ओपन अ मेडिकल स्टोर। ऑल सर, ऑल क्लियर? Yes, sir. Everything is clear. I hope I am not going fast. No, correct speed, sir. Thank you, thank you. Right?
So once you have opened this, then you will ask a question. Can I open, these are questions, can I open a medical store after D Pharma? Yes. The answer is the official requirement to open a medical store in India is becoming a registered pharmacist. You have to be a registered pharmacist. That's the criteria. Second, so after completion of your D Pharm, आपने जब अपना 12th के बाद D Pharm 2 साल का कर लिया, your state pharmacy council will obtain a certification that will take around 45 days, and after the registration process you can open a pharmacy shop. जो मैंने आपको बोला था, डी फॉर्म करने के बाद आफ्टर 45 डेज स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो दिल्ली में बेस्ड है, ओखरा में बेस्ड है, वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन दे देगा एंड देन यू कैन ओपन योर फार्मेसी शॉप. अगर मान लीजिए आपके पास फंड्स की कमी है एंड यू वांट टू टेक अ लोन, can you get a loan and what are the criteria for getting a loan? So the criteria for getting a loan is you must hold a Indian citizenship. आपको, आप अगर जापान के हो या आपका पास इंडियन सिटीजनशिप है, then you don't qualify, आपको नहीं मिलेगा. That's point number 1. Point number 2 is your आपकी एज should be between 25 to 60 years, right? And I'm sure आप इस एज में सब फिट होते हो. Third point is you must be self-employed, right? ये नहीं कि आप पार्ट टाइम कर सकते हो. पार्ट टाइम is basically not allowed as per the guidelines. Fourth is you should have a business experience of 3 years at least. That is the criteria. कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको लोन मिलने में और उम्मीद हो सकती है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका 3 ईयर का क्राइटेरिया है, कुछ ऐसा, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन द फोर्थ है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से फिनेंस ले रहे हो. द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, भाई इज केमिस्ट शॉप अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? मैं आपको बताऊं, कुछ फार्मेसीज ऐसी हैं मेरे एरिया में जिनका पर मंथ प्रॉफिट 1 या 1.5 लाख आराम से होता है, आराम से, अगर उन्होंने सब क्राइटेरिया किया है. और 1 या 1.5 लाख प्रॉफिट होना बहुत बड़ी चीज है. अगर आपने सही तरह से प्लानिंग किया है, आपने सही वेन्यू, सही जगह चूज किया है, सही डॉक्टर से कांटेक्ट हैं, आपके 3 डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर आपको एटलीस्ट 70-80 हजार का प्रॉफिट पर मंथ आराम से दे सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल हो. But if you are doing an unprofessional, then it is difficult. Be a professional pharmacist and open a medical shop. You can make a minimum profit of 70 to 80,000 rupees per month. कुछ फार्मेसी है जो बड़े फार्मेसी हैं, वो तो 4, 5, 6 लाख भी बनाते हैं. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं. ऑन एन एवरेज आराम से आपको 60-70 हजार का प्रॉफिट हो सकता है. How much profits does a medical store makes? अब मैंने इसमें क्लासिफाई किया है, इसके मतलब कैसे और कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट हो सकता है. प्रॉफिट कैन रेंज फ्रॉम 5% to 30%. डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और उसमें कैसे प्रॉफिट होता है मैं वो आपको जानकारी अभी दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जैसे आपकी हुआ हॉर्लिक्स हुआ या कोई जेलोसिल हुआ
आप डाइजीन हुआ, विक्स हुआ, आप जाकर उनसे मांगो तो मिनिमम प्रॉफिट उसमें 12 to 15% होता है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन है, ब्रांडेड मतलब जिसमें कंपनी ब्रांडिंग किया है, फॉर एग्जांपल टेल्मा, आपका आपका टेल्मा हुआ, आपका सिलाकार हुआ, आपका और भी जो ब्रांड प्रमोट होता है, उसमें प्रॉफिट आपका 20% मार्जिन प्लस हो सकता है, राइट। द थर्ड पॉइंट इज जेनरिक मेडिसिन। सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है आपका जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मतलब जो कंपनी आपको डायरेक्टली बनाकर बेचती है। आजकल बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ड्रग आपको एक ड्रग वो मैन्युफैक्चर कर देगी, मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट या मेटोप्रोलॉल टार्टरेट, राइट, या आइसोसॉर्बेट 5 नाइट्रेट, और वो आपको बिना ब्रांडेड बेच देंगे। उसमें आपका प्रॉफिट कैन गो अप टू 300% एज वेल, मिनिमम 50% एंड इट कैन गो अप टू 300% एज वेल। सर्जिकल आइटम्स में बहुत प्रॉफिट मार्जिन है। एक एग्जांपल आप कॉटन छोटी सी ले लीजिए, तो वो छोटी जो कॉटन होती है वो 20 या 25 रुपए की होती है। जो उसमें प्रॉफिट होता है वो मोर देन 200% प्रॉफिट होता है, या मोर देन 100% प्रॉफिट होता है। तो सर्जिकल्स में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हैं। और पॉइंट, प्रोपेगेंडा मेडिसिन आती है। प्रोपेगेंडा मतलब किसी छोटी कंपनी खुल गई है, वो स्टॉकिस्ट ने अपना, कुछ कंपनियां खोल रही हैं, वो मेडिसिन दे रही हैं, उसमें ऑफर्स बहुत आते हैं। अगर आप 10 स्ट्रिप लेंगे तो आपको दो स्ट्रिप फ्री मिल जाएगी, तो आपको मतलब 20% प्रॉफिट होता है। तो बहुत से ऑप्शंस हैं। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कस्टमर चाहता है आप उसको वो दीजिए। कभी प्रिस्क्रिप्शन मत चेंज कीजिएगा डॉक्टर का। डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है एंड दैट इज अनएथिकल एज वेल। अगर डॉक्टर ने ब्रांडेड लिखा है कि आप इसको टेल्मा दीजिए या मेटिक्सेल दीजिए, तो आप वो जो ब्रांड है वही रखिए, कोई और ब्रांड सब्स्टिट्यूट ना करें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जाकर डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है, क्या मैं आपको दूसरा दे दूं। पेशेंट को भी पूछ सकते हैं। विदाउट द नॉलेज ऑफ द पेशेंट यू शुड नेवर चेंज द ब्रांड। इट्स नॉट अ ग्रेट एथिकल वे, अंडरस्टैंड, राइट। तो मेरा पॉइंट अगेन वही है कि आप जितना प्रोफेशनल होंगे उतना लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज प्रोफेशनल लोगों की कमी है इंडिया में। और जितना प्रोफेशनल होंगे, आप एक अच्छा एप्रन पहनिए, एक अपने 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 इसको बड़ा नीट एंड क्लीन लगे, क्योंकि जैसे ही वो आए अंदर, वो आपकी पहला नजर उसके आपकी शॉप में जाता है। आप कैसे ड्रेस पहने हैं, आप एप्रन जरूर पहनिए, एप्रन में आपका नाम लिखा होना चाहिए, तो उससे आपका प्रोफेशनल आउटलुक अच्छा दिखता है। जो प्रिस्क्रिप्शन आए उसके हिसाब से आप मेडिसिन दीजिए, नेवर सब्स्टिट्यूट। अगर ये सब आप चीजें करेंगे, so you will become a highly successful businessman. And once you become a highly successful businessman, you will earn lot of profits. आपका नाम हो जाएगा। जैसे अगर मुझे दवाई लेनी है तो मैं 2 या 3 जगह ही लेता हूं, मेरी कॉलोनी में या मेरे एरिया में, कहीं और नहीं, क्योंकि it is all about trust factor. If you are able to instill trust, people दूर से आपकी फार्मेसी में आकर लेंगे। तो आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, किसी की लाइफ का जॉब है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यू नीड टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। दैट्स अ मैसेज फ्रॉम माय साइड। पॉल साहब ठीक चल रहे हैं? Sir, पॉल साहब what be?
Hello? Sir, can you hear me? Yes, sir is hearing, but sir is busy on some call. Okay, is it fine, Pooja? Yes, sir, it's fine. Very good. Okay? So that is very important. The third point is, which I have already told you, which degree is required to open a medical store. 12th standard. After completion of your diploma in pharmacy, you are eligible to apply for a license for a medical shop. And for a qualified pharmacy, you need to be having a B Pharm and a M Pharm degree. अगर आपको qualified pharmacy करना है. This is what I have told you guys about how to open a medical shop and the other things. Now I will come to a very important topic. कोविड की वजह से बहुत सी ऑनलाइन फार्मेसीज भी ऑपरेट कर रही हैं और लोग कंफ्यूज्ड हैं. जब 2018 में कुछ फर्स्ट ऑनलाइन शॉप आया तो बहुत लोगों ने मतलब जो फार्मासिस्ट लोग हैं या जो ड्रग है वाले लोग हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया कि ओपन फार्मेसी करना, ऑनलाइन फार्मेसी इज नॉट लीगल. तो I will try to give you an status what is today on online pharmacy. Online pharmacy they are not regulated. आज तक कोई भी online pharmacy are not regulated because there is still an opposition from lot of people that it is not ethical. So regulation नहीं है अभी तक. Second, in the absence of clear regulations, online pharmacies operate through marketplace and they have created a platform where you can place your order and they will come and deliver as per the Drugs and Cosmetic Act and rules of India. That's point number 2. Point number 3 is there is also other regulations like the Information Technology and the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act also apply on the online pharmacy. So the message is right now online pharmacies are not regulated, but based on the platform which they have created, and as per the Drugs and Cosmetic Act, you place an order and they come and deliver to your house. So that is the current status of online pharmacy. Now the second point is कौन से मेजर प्लेयर्स हैं ऑनलाइन फार्मेसी में. मेजर प्लेयर्स आजकल हैं नेटमेट्स है, फार्म इजी है, टाटा 1mg है, टाटा ने 1mg से कोलैबोरेट किया है और ये 4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट ऑनलाइन फार्मेसी हैं जो आजकल इंडिया में अक्रॉस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. द लास्ट पॉइंट इज हाउ टू सेट अप एन ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस is based on first is you have to choose a platform. There are different platforms which are available, e-commerce platforms, some platforms like Presto, Shopify, Magneto. These are platforms which are helpful for online store. और एक बार आपने जब platform choose कर दिया, you also need to have a web hosting. Web hosting is one of the important thing in e-com pharmacy, and then you need to get a customer support. Customer support मतलब using artificial intelligence. ये chat box हुआ आपका, where जैसे ही आपने टाइप किया वो कुछ मैसेज आएगा, वो मैसेज में आप डालिए, that's the customer support. So these are certain areas where you can set up an online pharmacy business. So it is not regulated, but because of pandemic and COVID, people have created a platform where they come and deliver, and they also have the authority of the Drugs and Cosmetic Act of 1940, right?
So if I have to conclude my presentation, what are the key takeaways? जो दो important point मैं कहना चाहूंगा आपके सामने. Important opportunity बहुत है. If you are opening a quality medical shop, presently only 60% of India population has access to medical shops. Requirement और हैं. अच्छे मेडिकल शॉप की रिक्वायरमेंट्स और हैं and there is a great opportunity. That's the point number one. Point number two, before setting a medical shop, have a thorough survey. Understand, create a good business plan. And if you are able to create a good business plan, understand your market, your areas, your locality, then you should say that yes, this is the area where I am going to open a shop. The third point, future is online pharmacy, although it is not it needs regulation. Future है, लेकिन अभी तक clarity नहीं है कि कैसे लोग इस पर regulation लाएंगे. That's point number 3. Point number 4 is profitability margins are extremely good in setting a medical shop. जैसे मैंने आपको देखा, सर्जिकल्स में कितने प्रॉफिट है, ब्रांडेड में कितने प्रॉफिट है, जेनरिक्स में कितने प्रॉफिट्स हैं. सो देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर. बिजनेस है, पोटेंशियल है, नीड है. अगर आप लोग रेडी हैं, प्लानिंग बढ़िया करेंगे, सही एरिया में खोलेंगे, you will become the most desirable businessman and you will also earn great profits as well. So these are some key important takeaways and you can also reach us on below address. अगर आपको कोई problem है, you want to know something, this is the website and this is our contact number where you can reach us and we are there to help you and we are here there to guide you. Right? So now I have finished my presentation. In case anybody has any questions, it is open for question and answers. Thank you so much for your patience listening. Thank you, Pooja. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, from participant sides, anyone having a questions, they may ask. इतना क्लियर था क्या मैं? Sir, I am having one question, sir. हाँ. That what is the biggest issue, Yes, sir, tell me. facing the pharmaceutical healthcare industry? What happened? What is the biggest issue that pharmaceutical healthcare industry was facing, sir, nowadays? See the biggest issue, if you ask me, what are the challenges what the pharmacy was facing is manufacturing. Lot of manufacturing earlier was not happening in India, right? That is point number Yes. one. And the most important is that new drugs were not coming, the new molecules were not coming in India. But if you ask me, in diabeto segment, in last 4 years, there has been good amount of molecules which have come. And जो diabeto therapy आज है, it has changed a lot. So there were two issues. One is manufacturing. We were dependent on other countries for the product. And the second was the new products are not, we are not able to spend a lot of money on research and development. Percentage, only few companies are spending. Those are your multinationals. And some of the Indian companies like Sun Pharma, US Vitamins. So these are the challenging issues. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes. Next, anybody having any questions? Ask frankly. Hello. Yeah. Am I audible, sir?
Yes, you are audible very much. Sir, can I ask you one question? Yeah. Please ask me. Please ask me. सर मुझे नहीं पता कि मैं जो क्वेश्चन अब पूछने वाली हूँ राइट है या रॉन्ग, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं पूछ लेती हूँ. No सर मैं problem. बुक रीड कर रही थी, दैट इज व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन दैट मे बी किलिंग यू. सर वो एक मतलब फॉरेन ऑथर की बुक थी, यूएस के डॉक्टर ने मतलब एमडी डॉक्टर ने वो बुक लिखी थी. एंड सर उसमें ऐसे लिखा था कि मतलब डॉक्टर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि उन्हें बस इतना पता होता है कि अगर एक डिसीज होता है तो उसके ऊपर कौन सा मेडिसिन मतलब देना चाहिए, ये उन्हें पता होता है. बट सर उन्होंने वहाँ पे ऐसे बताया था कि डॉक्टर रॉन्ग तरीके से ट्रीट करते हैं. मतलब Yes. अगर हम मेडिसिन के बजाय अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर देंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा. इट मीन सर उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे डिसीज के एग्जांपल्स भी दिए थे, लाइक बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस थे, इवन डायबिटीज, कैंसर, कैटरैक्ट, Yes. अर्थराइटिस, Yes. सभी मतलब उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के थ्रू उन्होंने वो क्योर कैसे करते वो उन्होंने बताया था. एंड Yes. सर हमें ये भी पता है कि जो हम मेडिसिन देते हैं उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हमें फेस करने पड़ते हैं. तो सही सर बात. अभी फार्मा इंडस्ट्रीज इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के ऊपर क्यों नहीं रिसर्च कर रही है? मतलब ये तो बेस्ट वे है ना कि ट्रीट करने का. लाइक अब सर कोरोना वायरस का अगर एग्जांपल लिया जाए, हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस होने के बाद उसे कैसे ट्रीट किया जाए? इसके बजाय हमें ये पता है कि कोरोना वायरस उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है. तो हम ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं ना जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है एंड उनके ऊपर कोरोना वायरस अटैक ही नहीं कर पाएगा. यस. या आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और अच्छा क्वेश्चन है. नाउ आपका नाम क्या है? सर लक्ष्मी हेब्रे. हाँ, लक्ष्मी हेब्रे. लक्ष्मी. सो लक्ष्मी, देखिए क्या मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा. आजकल डॉक्टर की भी चैलेंजेस है और पेशेंट्स के भी चैलेंजेस है. नाउ लेट मी टेल यू डॉक्टर्स चैलेंजेस. पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, जब उसे कुछ बीमारी होती है, राइट, ज्यादा बीमारी नहीं, तो जब डॉक्टर उसे देख लेता है तो बोलता है नहीं आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, आपको एक दवा देता हूँ और आपको खाने में ये चीज करना है. तो जब पेशेंट बाहर आता है बोलता है क्या डॉक्टर है यार, बेकार में आया, एक ही दवा दे दिया मुझे, कोई फायदा नहीं है. तो वो डॉक्टर का चैलेंज है, राइट. तो डॉक्टर क्या करता है, अच्छा डॉक्टर, और डॉक्टर अब सोचता है कि मेरी प्रैक्टिस तो बढ़ानी है, तो वो क्या करता है, उसको मल्टीविटामिन दे देता है, उसको आयरन दे देता है. आप ये बताइए क्या ये जरूरत है मल्टीविटामिन्स और आयरन की? आपके घर में अगर आप अच्छा अच्छा खाना खाएं, आप आयरन में आप अनार खाइए या प्रोटीन में खाइए, तो ये पेशेंट को भी समझना चाहिए कि मेरा हेल्थ का क्या प्रॉब्लम क्या है. क्या अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर दूं तो आपकी 50% ऑफ डिजीज आपकी वैसे ही कम हो जाएगी, राइट. नाउ न्यूट्रिशन जो कंपनीज है, एबर्ट इज अ बिग न्यूट्रिशन कंपनी, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है, वो जो ड्रग्स हैं दोज आर रिलेटिवली कॉस्टली और हर कॉमन मैन उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो न्यूट्रिशन कंपनी अगर ओरिजिनल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है, और वो अभी बहुत सी कंपनीज पोजीशन में नहीं है इन्वेस्ट करना. तो मैसेज यही है कि इट इज योर हेल्थ. अगर लाइक फॉर एग्जांपल यू टेक डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल दें तो आपकी बहुत सी चैलेंजेस कम हो जाएंगी, आपको बाहर या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ये सब तो मार्केटिंग गिमिक्स है, डॉक्टर पर प्रेशर डलता है, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मेरी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है. अगर वो आप समझ गए, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व. I hope I have answered your question, Lakshmi. Yes sir, yes, thank you sir. Thank you.
कॉन्ग्रेचुलेशन रितीश सर, Yes, sir. Thank you. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। Thank you. Thank you, sir. सारे जो भी एस्पेक्ट्स है ड्रग स्टोर के सभी के ऊपर आपका इंसाइट था। Yes, sir. बहुत सारी आइडिया बच्चों की क्लियर हो गई है और ग्लोबल सिनेरियो जो है और क्या स्कोप है, कितने अपॉर्चुनिटीज है, व्हाट प्रॉफिट वी आर गेटिंग, वो Correct. सब के ऊपर आपने इंसाइट डाला है। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. मतलब कोई भी क्वेश्चन, या बोलिए। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. And if any question is there, anything is there, they can ask me tomorrow also. Not a problem. श्योर। ठीक है? And thank you, and we'll catch up tomorrow. आवाज नहीं सर, म्यूट है, म्यूट। Selfie, we'll take one selfie. All the participants are requested to please on your camera. कैमरा। कॅमेरा ऑन करा लवकर। एकदम चांगलं दिसतंय। Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, everybody. Take care. It is your health, and you are responsible for your health. Take care. See you tomorrow at 11 a.m. Bye-bye. Okay, Yes, bye. sir. Thank you, sir. Have a good Thank day. you, sir. Thank you so much, sir. Understand lot. Yeah, thank you. Thank you. ओके सर। मुलांना विनंती आहे की लवकर जॉईन व्हा उद्याच्या मीटिंगला। चला क्लोज करून टाकू। Oh, sir.